Yes, good evening, all of you. Can you see the screen? Good Yes, evening, sir. sir. Yes, very Good good evening, evening. sir. Yes, very good evening. Good Yes, evening, today sir. we are going. Yes, very good evening. Today we are going to start So, again. sorry, sir. So, Uh, actually, when we will have the classes of literature? Literature, ma'am. Actually, today is the class of literature, but in place of that, I am teaching grammar because 2 days actually I was on holiday. That's why today I'm teaching grammar. Okay, so Okay. most probably every Wednesday, Thursday, and Friday. These 3 days we will discuss grammar. But this week I'm teaching grammar only. Okay, but next week I will teach literature. Okay, sir. Thank you. uh, Wednesday, Thursday, and Friday. These 3 days literature and 2 days grammar. Okay, so now you can Okay, see sir. today we are going to discuss now second tense, present continuous, progressive, and imperfect. Okay, these three tenses, but I have written three tense name, but actually this is single tense, only one tense. Present continuous is also known as present progressive, and present progressive is also known as present imperfect. Remember this thing. When the question paper is tough, so that time they are giving this type of option. Generally, they are giving, this is very common nowadays. Present continuous, everybody knows about it. So, in the beginning, last day we have discussed already. SVO concept will be changed into OVS, right? S for subject, V for verb, O for object. So what we have to do, in place of subject we have to put here object, and here we have to put subject. ठीक है, ये मैंने आपको रूल बता दिया था. अब देखिए यहाँ पे क्या है, what they have given in present continuous, active voice. So what is the rule of active voice? I told you last time कि बिना आइडेंटिफिकेशन के, if you are unable to identify that tense, you cannot change into passive voice. First only have to identify. And basic concept whatever I have told, right? SVO will be changed into OVS. This basic concept also have to keep in mind, क्योंकि आगे हम एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, वहां कंफ्यूज होने लगेंगे आप फिर. ठीक है, सो इसके लिए आपको जो है बेसिक रूल्स तो आपको पता भी होना चाहिए. व्हाट वी हैव टू डू, according to OVS concept, we have to take this object in the beginning. Helping verb, whatever they have given, same helping verb we have to take here, same helping verb, and after that we have to use a being. अब देखिए जो मैंने कल स्टोरी बताई थी आपको, उसी से आपको रिलेट करो उसको. क्या बताया था मैंने आपको कि SVO will be changed into OVS. O we have to put V for helping verb plus main verb. So whatever helping verb they have given is amar, we have to put here. और मैंने आपको कल बताया था कि verb अपने सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड लेगा. सिक्योरिटी गार्ड की कौन सी कंपनी है? बी. बी में कुछ भी हो सकता था, वहां पे मैंने कहा था इजमार हो सकता था, राइट? वहां पे आपके पास बनाओ तो वॉज हो सकता है, परफेक्ट हो जाएगा तो बीन होगा, और वैसे आप यदि कॉन्टिन्यूस में होता बीइंग होगा. है तो सारे बी से बने हुए ना. So what we have to do, we have to take here being. Why? Because this is continuous tense. Always remember, whenever you want to change to passive voice of a continuous tense, so you have to use a being. क्यों ऐसा? लेकिन क्यों कि सर ठीक है continuous tense में हम लगा देंगे being, लेकिन ऐसा क्यों? सिंपल देखो, हम क्या कर रहे हैं, इस आईएनजी को, जो B1 के साथ आईएनजी लग रहा है, उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, V3 लगा रहे हैं. V3 लगाते हैं. तो ये जो रिप्लेस कर रहे हो आप, इस B के साथ मिलाकर आपको आईएनजी लगाना होता है. दैट्स व्हाई दिस इज द रूल, that whenever we want to change to passive voice of a continuous tense, we have to use a being. वही बेस हो गया. देखो इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड लेगा, कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म को हम हटाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट? तो ऑब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस बीइंग प्लस V3. V3 वाई मैंने आपको कहा था बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेगा वो. Strongest form, this form is known as the strongest form of the verb. That's why always means always, always we have to use your V3, right? Then by, जो मैंने कहा था सुपर बाइक है आपके 1 करोड़ की, बाय लगा देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएगा.
ठीक है, तो हमने क्या चेंज किया, देखो यहां तक तो सेम है, ये सब सेम है, सिर्फ चेंजेस यहाँ आपको अब याद रखना है कि इजमार के साथ बस बीइंग ऐड कर देना, बाकी तो एज इट इज है, वही पुराना कल का जो रूल हमने डिस्कस किया था ओवीएस कॉन्सेप्ट में। तो वी में जो हेल्पिंग वर्ब प्लस हम एडिशनल वर्ब लगा रहे हैं, यहाँ चेंजेस आएगा बस। So this is the best way. You can easily remember these rules, right? Easily. Now we have to change to negative. तो भाई continuous में negative में active voice में क्या होता है, not लगा दिया. You can see the active voice first of all, subject, then ismr, then not, then v1 plus ing plus object, then complements. ठीक है, अब पैसिव वॉइस में भी क्या करना है, ओनली नॉट ही तो पुट करना, बट व्हाट आई टोल्ड लास्ट टाइम, I told you that whenever you want to change into passive voice, always, sorry, means negative, always we have to put not just after the first helping verb. बोलो यहाँ तो एक ही हेल्पिंग वर्ब था इजमार ऑप्शंस में, तो हमने नॉट लगा दिया। यहाँ पे इजमार के साथ साथ एक जो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लग गया वो है आपका बीइंग। तो क्या करना है हमें, हमें इस पहले के जस्ट बाद लगाना है नॉट, बाकी तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, सेम एज ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इजमार आ गया, फिर नॉट आ गया, बीइंग आ गया, बी3 आ गया, बाय आ गया, सब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट्स आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, नॉट को पुट किया, यहाँ पे नॉट, ठीक है, नॉट को पुट किया। इसके बाद क्या है यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या है यहाँ पे, देखो सिंगल इंट्रोगेटिव में फिर एक्टिव वॉइस हम लेते हैं, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या है, यहाँ पे इजमार को उठाकर आगे ले आओ, तो ले आए, क्या बचा आपका, सब्जेक्ट बचा, नॉट बचा, वी1 प्लस आईएनजी बचा, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स बचा। ठीक है, तो इसमें और करके देखो, हमने एक और रूल रखा है, वन मोर वी हैव रिटन हियर, इज प्लस नॉट इजंट, एम और आर प्लस नॉट आरंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इजंट और आरंट, एमेंड नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था जब मैंने टेंस बताया था, एमेंड नहीं होता है, तो आरंट लगाया हमने। तो क्या है, इजंट और आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, कैसे बनेगा, तो वही आपके नेगेटिव में से आप इसको पैसिव वॉइस के इजमार को आगे ले आओ, ले आए इसमें, फिर ऑब्जेक्ट ले आए, फिर नॉट हो गया, फिर बीइंग हो गया, बी3 हो गया, बाय हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, बन गया ना इसमें, राइट। ऐसे देखिए डबल इंट्रोगेटिव भी क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच प्लस सिंगल इंट्रोगेटिव, सो पैसिव वॉइस में भी डब्ल्यू एच प्लस सिंगल इंट्रोगेटिव। अब इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक एक्टिव वॉइस की, मतलब सिंपल की, पॉजिटिव सेंटेंस की। श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन। श्वेता व्हाट इज इट, दिस इज सब्जेक्ट, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, एंड द क्वेश्चन इज देयर ऑब्जेक्ट। श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन। अब क्या होता है देखो, द क्वेश्चन हमने यहां ले लिया, ले लिया द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के साथ क्या लगाना है, यहाँ पे इज, राइट, इज लगाया, क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाना है तो यू हैव टू यूज देयर इजमार मींस हेल्पिंग वर्ब। देन इज के बाद क्या आएगा, बीइंग, क्यों, क्योंकि ये रूल कहता है, ऊपर हमने भी पढ़ा था उसमें कि अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल हमें इजमार के बाद क्या लगाना चाहिए, बीइंग लगाना चाहिए, बीइंग लगा दिया हमने, राइट, बीइंग। देन व्हाट वी हैव टू यूज है, v3 आंसर्ड, और उसका क्या क्या, बाय श्वेता, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता हो जाएगा, ठीक है, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता हो गया, क्लियर है। अगला है दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, तो क्या आ जाएगा देखो, दे हो गया आपका सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया नेगेटिव वर्ब, पिकिंग हो गया आपका यहाँ पे मेन वर्ब, एंड द फ्लावर्स हो गया ऑब्जेक्ट। क्या करना है आपको, द फ्लावर्स पहले लेना है, ऑब्जेक्ट दिस इज, and according the flowers we have to use here are, because the flowers this is a plural noun, so are then negative, not we have to use being। अब देखो यहाँ पे not बीच में आएगा, यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आप आरंट भी कर सकते थे, दैट इज योर विश, and according to the options we have to do sometimes, so the flowers are not being picked, picked। अब यहां हमने by them नहीं लगाया, by them नहीं लगाया।
अब बाय देम कम नहीं लगाते, देखो लगाते भी है, नहीं भी लगाते, ब्रैकेट में लगाते, करना आपको वहां ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन पहला सबसे माइंड में सेट करना कि नहीं लगाते। दूसरा क्या सेट करना है कि कभी कभार हम लोग ब्रैकेट में लगा देते हैं। तीसरा सेट करना है कि नहीं जो है लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा कि नहीं लगाते। अब कब नहीं लगाते, देखो जब दे वहां पे अंडरस्टूड। मान लीजिए आप लोग मेरे लिए दे हैं आप लोग मेरे लिए, और मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टर सर हमारे विनोद सर भी हैं, और मैं उनसे कोई पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं कि आपके द्वारा कोई क्वेश्चंस किया जा रहा है, राइट। तो मैं क्या कहूंगा कि कोई भी मान लीजिए द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड, राइट, बस बाय बाय जो है मैं नहीं लगाऊंगा उसके बाद। तो यहाँ फिलहाल है द फ्लावर्स आर नॉट। मान लीजिए कहीं पे बहुत सारे लोग जो है फूल तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं मान लो, यहाँ पे तोड़ रहे हैं मान लो, या नहीं तोड़ रहे कुछ मान सकते हो कि वे फूल तोड़ रहे हैं। अब मैं वहां का ओनर हूं, मैंने डांटा उन लोगों को, कोई आया कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों डांटा जा रहा है, तो मैंने कहा द फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड, राइट, बाय देम लगाऊं कि बाय देम, वो जो तोड़ने वाले लोग थे वो तो वहां मौजूद है, प्रेजेंट है ना। तो इसलिए जब प्रेजेंट होगा, जब अंडरस्टूड होगा, वहां पे बाय देम नहीं लगाते जनरली, दे का बाय देम नहीं होता है। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट ऑल ऑफ यू, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दे का बाय देम कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो फिलहाल ध्यान रखो कि नहीं लगाना है जब वहां दे अंडरस्टूड हो, वहां पे मौजूद हो। इज इट क्लियर। लेकिन आप जब सेंटेंस में करोगे आपको कौन सा पता लगेगा वो मौजूद है नहीं, तो वहां ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो एक ही आंसर करेक्ट देंगे, या तो वो नहीं देंगे या तो वो देंगे, एक आंसर करेक्ट होगा और बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, वे फूल, तो आपको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि मैंने कहा मैं हूं मान लो कहीं पे, और मेरे सामने बहुत सारे लेडीज जो है फूल तोड़ रहे हैं मान लो, या नहीं तोड़ रहे हैं मान लो, पॉजिटिव में ले लेते हैं हम लोग एक बार के लिए समझने के लिए, कि मेरे सामने तोड़ रहे हैं और मैं उनको डांट रहा हूं, ठीक है। तो मैंने जो है कोई आया मुझसे कहा कि भैया क्यों जो है डांट रहे हो, तो मैंने कहा कि द फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड, उनके लिए जो है उनके द्वारा क्या हो रहा है कि पिक किया जा रहा है, लेकिन वो तो मौजूद है ना, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो भी उनको देख पा रहा है, और मैं जब बोल रहा हूँ तो वो भी उनको देख पा रहा है जो फूल तोड़ रहे हैं। तो जब वो दे वहां मौजूद होगा तो उस कंडीशन में हम लोग बाय देम नहीं लगाते। फिलहाल आप सिंपल अपने माइंड में सेट कर लो कि वेन एवर दे आर गिविंग दे, सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इन टू बाय देम, बस सिंपल दे का बाय देम नहीं लगाएंगे, इतना माइंड में सेट कर लीजिए आप। नाउ क्लियर दिस वन। यस सर। नॉट यस ओनली मैम को ही समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया बाकी इतना। यस सर। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग एक लेते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि जब एग्जाम में दिया है ना, जब भी देते मैं देखता हूँ आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। बस इसको एक बार के लिए एक्टिव वॉइस मानकर चलो ना, सॉरी मतलब पॉजिटिव मानकर चलो, आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज द रूल ऑफ द पैसिव वॉइस, ओबीएस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट हियर, तो फुटबॉल ले लो। अब भाई यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो इसका हेल्पिंग वर्ब इसके साथ के अकॉर्डिंग हम इज पहले लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, राइट। तो इज फुटबॉल, अब क्या होगा, इज भी लग गया फुटबॉल भी लग गया, क्या होगा, बीइंग। बीइंग क्यों आएगा, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस पे जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो उसमें आपका जो है बीइंग आना ही आना है। एक चीज माइंड में सेट कर लो कि ऑलवेज इन कंटीन्यूअस टेंस वी हैव टू यूज बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद क्या है, प्लेड बाय अस, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय अस, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव में भी वैसे है, पहले क्या है, ये WH है, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या है, सब्जेक्ट है, नेगेटिव वर्ड है, मेकिंग वर्ब हो गया और टी हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो ना, ऑब्जेक्ट क्या है, टी, तो टी को ले लिया, भाई WH का तो सेम WH रहेगा ना, ठीक है। अब क्या हो गया, इस टी के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, बाकी नॉट का नॉट लगा दिया। अब क्या ऐड करेंगे हम लोग, बीइंग, उसके बाद मेकिंग का मेड, बायर हो गया।
why is tea not being made by her हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो वैसे जनरली आपके पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं ज्यादा, लेकिन आपको मैं बता दूं प्रैक्टिस आप सारे का ही करके जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है, सारा करके जाना है आपको। अब देखिए इसमें, हाँ ये तो हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया भाई, ठीक है। एक एक एग्जांपल ही दिया है, वैसे आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। सेकंड टेंस वी हैव कंप्लीटेड, नाउ थर्ड टेंस। भी देखो आगे हमें एडवांस लेवल पे भी पहुंचना है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डिले नहीं कर सकते। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है एक्टिव वॉइस का? अगेन एसवीओ कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज, राइट? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। अगेन आई एम टेलिंग, if you are unable to identify the tense, you cannot change to passive voice. Remember this thing, first of all you have to identify कि present perfect को कैसे पहचानना है। तो बस इतना याद कर लो, has है plus V3, बाकी तो has भी कौन सा लगता है, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्स रहेगा, तो अपनी जगह रहेगा। So only we have to keep in our mind has a plus V3 we have to use here, has a plus V3, simple. So क्या करना है, SVO का obvious में चेंज करना है। What we have to do, ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, फिर हैजअप ले लिया हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस हैजअप प्लस बीन ले लिया हमने यहाँ पे। क्यों? अब देखो ऑब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब दिया होता है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, वो तो कंपलसरी है। अब हमें जो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लगाना था भाई, कौन से कंपनी का था? वो बी कंपनी का था, सिक्योरिटी गार्ड। तो बी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड क्या बनता है? जैसे मैंने आपको कहा कि इन ऑल द कॉन्टिन्यूअस टेंस वी हैव टू यूज बीइंग, same as in all the perfect tense. All the perfect tense is what? Present perfect, past perfect and future perfect. Three perfect tenses we are having. So in all the perfect tenses always we have to use their been, always been, right? been लगेगा इसमें, क्लियर है? बेस फॉर्म वही है, बी का बीन बन गया, बी का बन गया था बीइंग, बी का बन गया था इज अमार, बी का फिर आगे पास में बन जाएगा वॉज वर, राइट? बी का फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग और परफेक्ट टेंस में बीन, राइट? सब बी वाले फॉर्म्स है। और मैंने बताया था आपको एग्जाम में यदि बी ब्रैकेट में देते हैं तो यही आपके ऑप्शंस में होना चाहिए, जमार हो सकता है, वॉल्वर हो सकता है, बीइंग हो सकता है, बीन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बीन लगा दिया हमने, तरफ से अपने ऐड कर दिया। देन V3 कॉमन है भाई, पर वो हमेशा V3 आता है पैसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स, सिंपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होगा? नॉट लगाओ, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी नॉट लगाओ, राइट? बाकी तो कैसे कॉपी पेस्ट किया, सब्जेक्ट हैज अ V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ऐड किया हमने? जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू पुट नॉट, सिंपल। Same is in passive voice also. What do we have to do? Copy paste again. Only we have to add not here. Object has have not been V3 by plus subject plus complements. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? Not add कर दिया, not, ठीक है, not add कर दिया, क्लियर हो रहा है? Not add कर दिया। अब इसके बाद यदि सिंगल इंटीग्रेटिव बनाना तो वही रूल आ जाएगा, एक्टिव वॉइस का भी वही रूल, हैज हैव ले लो आगे, और पैसिव वॉइस का वही रूल, हैज हैव आगे ले लो। कैसे किया देखो, हैज हैव ले लो आगे तो क्या बचा? सब्जेक्ट बचा, नॉट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सेम एज इन पैसिव वॉइस, व्हाट वी हैव टू डू? टेक द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग, देन व्हाटएवर रिमेनिंग वी हैव टू कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्ट नॉट बीन V3 बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। अब हम लोग डायरेक्टली क्या ले लेते हैं? डायरेक्टली हम लोग ले लेते हैं, अच्छा यहाँ पे आपके डबल इंट्रोगेटिव का भी है, WH प्लस सिंगल इंट्रोगेटिव, ये तो सेम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो हम पहले ले लेते हैं एग्जांपल हो गया आपका पॉजिटिव का। देखो अब ध्यान से देखना, दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स, दे इज सब्जेक्ट, हैव इज हेल्पिंग वर्ब, कट इज मेन वर्ब एंड ऑल टेलीफोन वायर्स दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑल टेलीफोन वायर्स। भाई क्या उन्होंने क्या काटा है? ऑल टेलीफोन वायर्स। तो यहां से देखो ये इतना बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखिए। तो हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू रूल हमें ऑल टेलीफोन वायर्स ओबीएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैव है, दो में से एक है, हैव लगा दिया। फिर परफेक्ट में मैंने क्या कहा? ऑलवेज वी हैव टू यूज बीन। और कट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? कट, कट, कट। एक बार मैं देख रहा था वहां पे ऑप्शन में दिया था कटेड, कभी नहीं होता, क्योंकि हम बचपन में सोचते थे कोई ना आए तो भाई ईडी ईडी लगा दो सब बन जाएगा, वाओ,
ना, कटेड कटेड ना, सेटेड सेटेड सेटेड, ऐसा नहीं होता, सेट 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 होता है, कट 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 होता है, पुट पुट पुट, पता चले पुटेड 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 बना दे रहे हो आप, नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन नोटिस करने वाली बात क्या है, दे का हमने बाय देम नहीं लगाया, सिंपल, नहीं लगाया। ठीक है, आगे देखिए, संबंध सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्टोल हो गया मेन वर्ब, और आपका माई वॉच हो गया ऑब्जेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, माई वॉच पहले लगा दिया, हैज आ गया क्योंकि माई वॉच सिमिलर है, हैज लगाएंगे, बीन स्टूडेंट, फिर बाय संबंध नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये दे तो अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, संबंध, यहाँ पे संबंध आपका क्या हो गया, संबंध आपका अननोन सब्जेक्ट है, अननोन सब्जेक्ट, राइट। अलग अलग रीजन होते हैं, हालांकि आपसे कोई रीजन नहीं पूछने वाला बा एग्जाम, नो वन इज गोइंग टू आस्क द रीजन, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग ए समवन, खाली मैंने एक्सप्लेन किया, उस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दो हो गए एग्जाम्पल। थर्ड देखिए, सब्जेक्ट हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड हो गया मेन वर्ब, अलाई हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या करना है, अलाई, अलाई के साथ क्या आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, देन यहाँ पे आएगा बीन, देन यहाँ पे आएगा टोल्ड, राइट, फिर आ गया बाय मी, आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, बाय मी। ठीक है, कोई टफ ही नहीं है इसमें, बताइए। अब एक सिंगल इंटरोगेटिव भी डिस्कस कर लेते हैं। हैज ही बॉट अ स्कूटर, तो हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या हो गया, देखो ये मैं बच्चों से बता रहा हूं, क्योंकि कोई मान लीजिए यदि आपकी कैचिंग पावर कम है तब भी आप समझ जाओ, बॉट है आपका मेन वर्ब, और आ स्कूटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, पहले स्कूटर ले लिया, स्कूटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज, क्योंकि सिमिलर है, तो क्या लगाएंगे हम, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बीइंग, फिर बॉट का बॉट ही रहेगा, इसमें V3 लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, V3 ऑलरेडी दिया है, बाय हिम हो गया। हैज अ स्कूटर बीन बॉट बाय हिम, तो भाई सबसे प्रेजेंट परफेक्ट में तो मजेदार चीज यही है कि मोस्टली इन ऑल द वर्ब्स दे हैव गिवन V3, so no need to change, right, same helping verb, sorry, same main verb we can use here, same as next one, they have asked why has he not repaired the car, why has he not repaired the car, so why, what is it, this is WH, has this is helping verb, he this is subject, not this is negative word, repair this is main verb, and the car this is object। तो क्या करना है, पहले WH सेम रखो, ऑब्जेक्ट ढूंढो, द कार है, द कार के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा, नॉट इसके बाद आएगा, बीन हम लगा देंगे, राइट, बीन यहां आएगा, ध्यान रखना, रिपेयर का रिपेयर, और ही का क्या बन गया, बाय हिम बना दिया, बस बन गया। व्हाई हैज द कार नॉट बीन रिपेयर्ड बाय हिम, तो ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं कि डायरेक्ट से पैसिव, एक्टिव से पैसिव देंगे, हमेशा पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव दे सकते हैं, समटाइम्स दे आर गिविंग इन कॉमन एरर, समटाइम्स दे हैव गिवन इन एज अ फिलअप्स, राइट, तो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, यू मस्ट बी परफेक्ट इन दैट ग्रामर, राइट, उस ग्रामर में आपको परफेक्ट होना है बस प्रैक्टिस करके। सो ये नेक्स्ट टेंस भी हो गया, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कितनी जल्दी से हो गया, क्योंकि आगे हम एडवांस लेवल का भी करेंगे, दैट्स व्हाई टेकन, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट, नाउ सी नेक्स्ट वन। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। देखिए सर प्रेजेंट का इसने चौथा, पीछे वाले का नहीं लिया है, पीछे वाले का नहीं अभी। व्हिच वन, दिस प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ एक सेकंड सर, हो गया सर। Now see, next one we are going to discuss present perfect continuous tense। वैसे इसका नहीं बनता है, राइट, इसका नहीं बनता है, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेकंड इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, लेकिन ध्यान रखना, वैसे आप लोग इंग्लिश के टीचर, तो आप लोगों को बताना जायज भी बनता है, हम लोगों को पढ़ाया गया और अभी पढ़ भी रहे हैं हम लोग, 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, लेकिन जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे या कहीं, तो आप ये जरूर बोल दीजिए कि 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में 12 टेंस के पैसिव वॉइस बन रहे हैं, राइट। तो आप कहोगे कि सर 12 टेंस के पैसिव वॉइस बन रहे हैं, तो आप तो यहाँ पे नो चेंज लिख रखा है, आप क्यों नहीं बता रहे हो? ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे जो है दशहरे में अपने घर पे नहीं बुलाया था, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ। देखिए मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो यूनिवर्सल कह सकते हो या
कह सकते हो जो इंटेलेक्चुअल साइंस के, इंग्लिश के, लिंग्विस्टिक्स होते हैं वो लोग, तो उन लोगों के बीच में अभी भी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, काफी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, काफी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसलिए प्रेजेंटली जो हमारे इंडिया में ग्रामर चल रहा है उसमें आर्ट को ही एक्सेप्ट किया गया है। बल्कि आप कई सारे बुक्स देखोगे, राइटर हैं और काफी सारे राइटरों ने 12 के 12 बना रखे हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाले और ना ही बच्चों के एग्जाम में पूछने वाले। तो क्यों हम लोग अपना माथा खराब करें बेफालतू? नहीं, बस इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है कि बाकी जो 4 हम नहीं बनाएंगे उसके भी पैसिबल बन गए, लेकिन फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं। नहीं, हमें इतना सिलेबस वैसे ही है तो क्या जरूरत है। तो फिलहाल आप करोगे नो चेंज, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या नहीं। तो सिंपल देखिए, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, V1 प्लस ing, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, सिंस और फॉर, टाइम और पीरियड, राइट। तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन अगर माइंड से आउट हो जाता है तो इसलिए हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आप ध्यान से देखकर बताइए क्या रीजन होगा कि इतना एडवांस हो गए हम लोग हर चीजों में, तो अभी भी इसमें कंट्रोवर्सी चल रही है। तो बताइए क्या ऐसा इसमें होगा कि जिसके कारण इसका पैसिव वॉइस कह रहे नहीं बनना चाहिए। एनीवन जो पहले पढ़ चुके हैं वो शायद बता देंगे। सर बिकॉज यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन ऑलरेडी लगा है जो प्रेजेंट परफेक्ट में लग चुका है। तो आप हैज, हैव की बात कर रहे हो, बीन की बात कर रहे हो, ये बताओ। सर बीन। बीन। हाँ, ये कौन से मैम ने आंसर दिया है? मीरा मैम ने। बीन। यस सर। वेरी गुड। देखिए, याद होगा जब हम उस स्टोरी को मैं बता रहा था कल, तो मैंने कहा था ना वो सिक्योरिटी गार्ड रखता है बी कंपनी का, और अभी भी मैंने आज भी बताया था क्या क्या होता है। इजमार होता है, वॉजवर होता है, और क्या बताया था? वॉजवर और बीन होता है और बीन होता है। उसमें से जो बीन दिख रहा है ऑलरेडी उन्होंने दिया है, राइट। ये बीन ऑलरेडी दिया है, इस बीन की वजह से नहीं बना रहे, इस बीन की वजह से, क्योंकि हम लोग परफेक्ट में ऑलरेडी बना चुके हैं हैज बीन और हैव बीन करके, B3 करके, तो उसको कैसे बनाते हैं। लेकिन चलो मैं इतना भी बता देता हूं, अभी जो प्रेजेंटली बन रहा है मॉडर्न इंग्लिश में, उसको पता है किससे बना रहे हैं? उसको बना रहे हैं बीइंग से, उसको बीइंग से बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, तभी मैंने हिंट दे दिया आपको थोड़ा सा, इससे बना रहे हैं। ठीक है, आप नहीं बनाएंगे सिंपल कि हैज और हैव के बाद यदि बीन आ रहा है फिर B1 प्लस ing आ रहा है, तो आपको पता है कि बीन आने पर नहीं बनता। कौन कौन सा नहीं बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये 3 तो हो गए। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला कोई नहीं बनेगा, सिंपल। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। और इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट का सबसे पहला टेंस, एंड आई टोल्ड यू, देखिए एग्जाम में टेंस तो पूछेंगे कंफर्म, हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चंस बनाए और टेंस से ना पूछे। तो जो टेंस वाला पीडीएफ, पता नहीं मैंने शायद नहीं भेजा ना टेंस वाला पीडीएफ अभी तक। नो सर। नो। थोड़ा शेड्यूल बिजी है, इस वजह से मैं भेज नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत लंबा पीडीएफ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें बड़ी जो है वो थोड़ा ना कुछ ऐसे हो रखा है, थोड़ा सा रेड रेड से ऐसे ना, जब मैं लिखता हूँ ये तो डिलीट हो जा रहा है। देखो ये कुछ परमानेंट है, यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहे हैं, तो कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो उसको मैं साफ करके बढ़िया करके दिवाली की सफाई के टाइम करके मैं भेजूंगा। मतलब इतना लेट भी नहीं भेजूंगा, दिवाली की सफाई से कह रहा हूँ, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, राइट। जरूर पढ़िएगा उसको। और उसमें खासकर एक्सरसाइज जो दिया है आप देखिएगा, वो टीचरों के लिए स्पेशली बनाया हुआ है मैंने, कि टीजीटी पीजीटी आपके हर एक, और आप मैच भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ब्लाइंडली लिख दिया हो। आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेगा, डिट्टो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है आपका एस, मतलब वही एसवीओ कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट देन V2 देन ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट्स। V2 है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने कहा था इजीली कैन आइडेंटिफाई इफ दे हैव गिवन एनी V2, so that is past indifferent tense. What we have to do? Again we have to use a obvious concept, simple obvious concept.
क्या करना है obvious concept के according we have to take object in the beginning we have taken this is the past that's why as a helping verb we have to take was were क्योंकि जब कोई helping verb नहीं है तो past में हम was were लेंगे क्यों क्योंकि उस be का was were बनता है past के लिए आफ्टर दैट B3 आएगा क्यों क्योंकि भाई B3 मैंने कहा है हमेशा वो होता है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म हो गया फिर बाय सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो फिर कहां से चेंजेस आया बस इतना चेंज आया वॉज वर ही तो लगाया बाकी तो ऑब्जेक्ट पहले आता ही है B3 हमेशा होता ही है बाय सब्जेक्ट होता ही है कॉम्प्लीमेंट लास्ट में आता ही है तो क्या ऐड किया हमने सिर्फ ये वॉज वर ऐड किया राइट ऐसे ही जब एक्टिव वॉइस में डिड नॉट लगेगा इस पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या करना है सबसे पहले सब्जेक्ट आया डिड नॉट आया V1 आया ऑब्जेक्ट आया कॉम्प्लीमेंट आया तो क्या करना है आप जब पैसिव वॉइस बनाओगे बस जो भी दिया है उसमें नॉट लगा दो दैट्स ऑल क्या करना है देखो ऑब्जेक्ट सेम was were सेम क्या लगा दिया नॉट V3 by सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स सिर्फ हमने नॉट डिसाइड करना है कहां ऐड करना है जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू पुट नॉट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब तो यहां फर्स्ट तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है was were है नॉट लगा दो दैट्स ऑल फिर क्या करना है फिर इसका सिंगल इंटीग्रेटिव बना दो सिंपल हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो बस राइट सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स दैट्स ऑल क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा सेम एज पैसिव वॉइस आल्सो व्हाट वी हैव टू डू टेक द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग was were then object then not then V3 then by then subject then complements simple right same as double interrogative what we have to do whatever they have given the rule of active voice simple WH plus single interrogative डबल इंटीग्रेटिव में WH प्लस सिंगल इंटीग्रेटिव राइट ये तो हो गया 4 रूल अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है ध्यान दीजिएगा जरा इसमें आप नाउ फर्स्ट सेंटेंस आई हैव टेकन दिस इज नेगेटिव सेंटेंस द पुलिस सब्जेक्ट डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब हो गया कैच दिस इज मेन वर्ब the thief this is object in our colony this is complements the police did not catch the thief in our colony right तो क्या करना है इसमें देखिए the thief पहले आ गया ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो क्या करेंगे पास्ट इंडेफिनिट द was आ गया thief के साथ सिंगुलर के साथ आएगा क्या लगा दिया यहाँ पे नॉट लगा दिया फिर कैच का क्या बन गया कॉड बन गया फिर क्या गया इन आर कॉलोनी बन गया यहाँ पे राइट भाई द थीफ पहले आ गया उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दिया was उसके बाद आ गया नॉट आ गया उसके बाद हमेशा V3 तो कॉट आ गया कॉम्प्लीमेंट्स को देखो कॉम्प्लीमेंट्स यहां भी लगा सकते हैं इनर कॉलोनी और लास्ट में भी लगा सकते हो एग्जाम्स में दोनों देते ध्यान रखिएगा जो भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्स में डाल देना बाकी क्या बचेगा बाय द पुलिस ठीक है तो क्या लगा दिया द थीफ was not caught in our colony by the police ठीक है अगला देखो दूसरा वाला द पुलिस कॉट द थीफ अब ये पॉजिटिव हो गया सब्जेक्ट कॉट हो गया आपका यहाँ पे V2 थीफ हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्या करना है द थीफ लगा दिया द थीफ के साथ क्या लगाना है हमें was caught by the police क्योंकि द पुलिस उठकर पीछे चला जाएगा थीफ उठकर आगे आ गया और यहाँ पे was caught लगा दिया सिंपल अब आपको सर इसमें स्पेशल क्या था आप तो कहते हैं एडवांस लेवल का है अरे नहीं अभी तो नीचे है देखो अभी देखिए नीचे ये देखिए अब ध्यान दीजिएगा इसमें चाय वाय सब बगल में रख दीजिएगा काम धाम थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए ठीक है कुछ लोग तो काम करते हुए पढ़ना पड़ता है मुझे पता है थोड़ा सा रेस्ट लीजिए ध्यान दीजिए ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है द पुलिस दिस इज सब्जेक्ट अरेस्टेड दिस इज मेन वर्ब the thief this is object in our colony this is complements तो क्या करना है obvious लगाना है the thief पहले आ गया फिर क्या आ गया यहाँ पे was आ गया उसके बाद क्या यहाँ पे आ गया arrested ठीक है the thief was arrested आ गया in our colony लगा दो complements अब देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है क्या मिसिंग है जब बता सकते हो आप by the police By the police. बाय द पुलिस बताइए सही है या गलत है सही है क्यों? Yes, सही है. last one is correct or incorrect and why what is the reason Correct. behind it if this is incorrect yes please ma'am
सर अरेस्ट है तो पुलिस ही अरेस्ट करेंगे ना। वेरी गुड। चलिए मैम नाम नहीं बताना चाहिए। और कोई बताना चाहता है सेम आंसर या किसी का डिफरेंट आंसर है? हेलो, कुछ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये नेम तो देखना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छा आंसर दिया है। नेक्स्ट। हाँ ये दिख गए, सिन्हा मैम, यू हैव गिवन द आंसर। सिन्हा मैम, काजल सिन्हा मैम, यू हैव गिवन द आंसर। सर ये काजल सिन्हा मैम के सिवा किसने आंसर दिया था ये? काजल सिन्हा मैम तो ओल्ड स्टूडेंट है। हु हैज गिवन द आंसर? मीरा मैम, रोशनी मैम, यू हैव गिवन। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आप लोग तो नहीं पढ़े ना पहले। गुड। चलो देखिए, थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ हूं, इसलिए जब भी मिले टॉफी जरूर ले लीजिएगा, ठीक है? नेहा मैम ने तो छीन कर ले लिया मुझसे टॉफी कि सर मिले हो तो टॉफी तो चाहिए चाहिए। ठीक है, मैं भूल गया था, मैम ने मुझे रिमाइंड करवा दिया था। चलिए देखिए, काफी बार बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो ऐसे डीप आंसर्स देते हैं एज अ टीचर। हम लोग देखिए यहाँ पे एलटी का मतलब है आप लोग टीचर बनेंगे इंग्लिश के, तो ये जब डीप चीजें आपको पता होता है ना, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत अच्छा जो है कमांड आ रहा है। और प्लीज डू द प्रैक्टिस एट होम ऑल्सो। अब देखिए मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, कहाँ गया भैया, आ जाओ। हाँ ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैंने पूछा आप लोगों से? हमने यहाँ बाय द पुलिस लगाया था, यहाँ बाय द पुलिस लगाया था, यहाँ बाय द पुलिस नहीं लगाया और आएगा भी नहीं। तो यही तो सीखने वाली चीज है। सर ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा है, क्या रीजन इसके पीछे? तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ये डिपेंड करेगा आपके वर्ब के ऊपर। यहाँ कैच है, यहाँ कॉट है, तो वही पकड़ने वाला हो गया ना। तो आप थोड़ा सोच कर देखिए, आपके घर में पुलिस थीफ आ गए, चोर आ गए या मोहल्ले में आ गए, तो पकड़ तो कोई भी सकता है ना। पकड़ने के लिए कोई अथॉरिटी की जरूरत है क्या, बताइए? राइट? पकड़ने के लिए किसी अथॉरिटी की जरूरत है? नहीं है। भाई आपने, चोर आया, उसको दरवाजा बंद कर दिया अपने रूम में, पकड़ लिया उसको, मारा पकड़ के। आजकल तो लोग हाथ साफ करते हैं भैया, चोर मिला है कितने दिनों बाद, थोड़ा हाथ साफ कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा वाला भी होता है। लेकिन जब अरेस्ट करने की बात होगी तो बताइए क्या हम अरेस्ट कर पाएंगे? डू वी हैव एनी अथॉरिटी टू अरेस्ट एनीवन? नो। इवन आपने देखा होगा जज भी अरेस्ट नहीं कर सकता किसी, राइट? वो ऑर्डर दे सकते हैं, अरेस्ट करने का काम तो पुलिस का ही है, सिर्फ उन्हीं का है नहीं है? बताइए। तो एक्चुअली जब वो अंडरस्टूड होता है कि भैया यदि अरेस्ट करने की बात है, ना कोई मिलिट्री वाला किसी को अरेस्ट कर सकता है, ना ही कोई आपके जज कर सकते हैं, ना कोई लॉयर कर सकते हैं, ना कॉमन पीपल, कोई भी नहीं कर सकता पुलिस के सिवा, पुलिस को अथॉरिटी। तो जब वो अंडरस्टूड हो, अंडरस्टूड, देखो मैंने यहाँ पॉज लिया, ऊपर फटाफट फटाफट समझा दिया मैंने। जब वो अंडरस्टूड हो तब उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको बाय द पुलिस नहीं लगा। देखिए मैंने क्या किया, द थीफ ले लिया पहले, फिर पास्ट है तो वॉज लगा दिया, अरेस्टेड तो आएगा V3, और इन आर कॉलोनी लगा द, बाय द पुलिस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है। और मैंने बताया था यदि पुलिस नहीं आ रहा, सब्जेक्ट नहीं आ रहा, वहां पे बाय भी नहीं आएगा, वो गाड़ी भी नहीं देंगे, तो ना ही बाय आएगा ना ही द पुलिस आएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। इज इट? हाँ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अब इसको, ये जो पास्ट इंडिफिनिट दिख रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है? टेकन? नाउ सी द नेक्स्ट टेंस। सर ये फोर्थ टेंस कौन सा है सर? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा? सॉरी सर, आस्क अगेन। सर ये फोर्थ टेंस कौन सा है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा? अच्छा ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था, ऊपर ही नो चेंज लिखा हुआ देखिए ब्रैकेट में। हाँ सर, तीन तो इसके हो गए सर, फोर्थ कौन सा है इसके अलावा? एक और है ना? अच्छा तो सर आने दीजिए, अभी बताएंगे। वैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस है,
लेकिन अभी आने दीजिए, अभी तो पास्ट ही चल रहा है, ठीक है। जी सर, जी सर, तीन ठीक है सर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नहीं बनते हैं, जी ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नहीं बनेंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नहीं बनेंगे। और जो जी चौथा पूछ रहे हैं वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो वो आया नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं अभी तक, ठीक है, वो जी सर, चौथा वाला है, ठीक है जी सर। सर, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सिंपल देखो, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही कजन है, ये चचेरा भाई है, राइट। अब देखिए मैं मजाक में कोई चीज कहता ना, वो भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। चचेरा भाई का मतलब, कजन का मतलब है इसकी शक्लें वकलें कुछ मिलती जुलती होंगी। बस सिंपल है, आप देखोगे जहां जहां इजमार आया था उसकी जगह आपको वॉज वर लगा देना है, ठीक है, वॉज वर लगा देना है, क्योंकि है तो एक ही डायनेस्टी वाले लोग है ना। तो भाई वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बस बाकी सब सेम एज मिल जाएगा आपको। तो भाई नेम का भी वही होगा, if they have given here past continuous, so we can use here past progressive, we can use here past imperfect, right। जैसे वो प्रेजेंट में था ऐसे आपके पास्ट में ही था। तो क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, बस जहां इजमार है वहां उसकी जगह हमने वॉज पर लगा दिया। तो हमारा क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या लगाया हमने, वॉज वर लगाया, फिर क्या लगाया हमने, बीइंग लगाया, फिर क्या लगाया हमने, V3 लगाया, फिर क्या लगा, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। तो क्या करना है, वही आपका एसवीओ की जगह हमें ओवीएस फिट कर देना है, बस सिंपल, एसवीओ की जगह ओवीएस फिट कर देना है बस खाली। तो क्या किया हमने, हमने सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या करना है, वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेम हेल्पिंग वर्ब दिया तो वो तो लेना ही पड़ेगा, बस एक एडिशनल लगाना होता है हमेशा, एक एडिशनल, उसका बेस फॉर्म क्या होगा, बी। और ऊपर मैंने बताया था, इफ दे हैव गिवन कंटीन्यूअस टेंस वी हैव टू ऐड हियर बीइंग, BEING, बीइंग होता है, राइट। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस बीइंग, क्योंकि देखो कंटीन्यूअस टेंस ऊपर था प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसमें भी बीइंग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है पास्ट कंटीन्यूअस, यहाँ पे बीइंग ऐड कर, तो जल्दी याद हो जाएगा। और उसमें इजमार था तो उसमें हमने पैसिव वॉइस में भी इजमार यूज किया, यहाँ वॉज वर है तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में वॉज वर यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। तो यहां देखिए, यहां इसके बाद नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में देखो क्या करना है, बस नोट लगा दो, बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट, सब्जेक्ट वॉज वर, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। नेगेटिव में करना है आपको पैसिव वॉइस का, तो इसमें भी करना है, नॉट ऐड कर दो, रिमेनिंग विल बी सेम, राइट, कॉपी पेस्ट अगेन। तो क्या दिया है, एग्जांपल कैसे दिया देखो यहाँ, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, ये पूछ रहे थे, एक मैम पूछ रही थी सर डबल ऑब्जेक्ट वाला बताओ, तो देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाला आ गया, मैम कांग्रेचुलेशन, राइट। उस दिन मैंने बताया नहीं था क्योंकि हिसाब से मैंने सेट कर रखा है, तो धीरे धीरे करके एडवांस लेवल का बताएंगे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ देखो मैंने सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव का रूल नहीं बताया, अब तक तो बना ही लोगे आप लोग सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव का रूल, ठीक है, जरूर बना लेना अपने से, क्योंकि एडवांस लेवल पे हमें जाना है, तो थोड़ा थोड़ा एडवांस हम बताते हुए चल रहे हैं। अब ध्यान दो जरा, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका अ लेटर। अ लेटर क्या हो गया, ये डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह क्या नहीं लिख रही थी, तो क्या वर्ड से आपका आ रहा है यहाँ पे अ लेटर, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा था whom से फाइंड आउट कर सकते हैं, whom से किसे किसको, कि शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू whom, किसको नहीं लिख रही थी वो लेटर, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को नहीं लिख रही थी, राइट, अपने हस्बैंड को नहीं लिख रही थी। अब देखिए, देखिए बीच बीच में मैं मजाक कर देता हूँ, जोक कर देता हूँ कि थोड़ा सा लाइट करने के लिए, ठीक है, कि आप इजीली कंसंट्रेट कर सके, तो कभी कभार मैं मजाक भी कर देता हूँ, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। देखिए जरा इसमें अब क्या है, अब ये है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होकर आप लोग, जब भी दो ऑब्जेक्ट होंगे तो बनाना होता है। अब इसको मैं ये पूछता हूँ आपसे, अ लेटर है, ये बताइए लिविंग है या नॉन लिविंग है, इतना बता दीजिए मुझे पहले। नॉन अ लिविंग। लेटर नॉन लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया। हर हस्बैंड,
राइट? हस्बैंड लिविंग है, नॉन लिविंग है? इस जैसे ना, Living. मतलब फनी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे। लिविंग ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली लिविंग है, हस्बैंड है तो। लेकिन बताइए इन दोनों में से फीलिंग्स किसके अंदर है? हस्बैंड। ऑब्वियसली हस्बैंड के अंदर। वो तो चलो बाय मिस्टेक हर हस्बैंड, अच्छा लेटर के अंदर भी फीलिंग्स है? Sorry, husband. अच्छा मैंने सोचा मजाक में मैम कह रही है, सीरियसली बोला था आपने? चलिए देखिए, हर हस्बैंड के अंदर फीलिंग है। फिलहाल यहाँ बात हर हस्बैंड की नहीं, बात यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता, कोई भी हो जाता। वैसे तो बाय मिस्टेक हर हस्बैंड आ गया, तो हस्बैंड के अंदर तो ज्यादा ही फीलिंग्स होती है, ठीक है। वैसे फीलिंग लेस होकर रहना पड़ता है घर पे, अलग बात है, वाइफ के सामने, लेकिन फीलिंग्स बहुत होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है कि जब आप इस लेटर को लोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ध्यान देना जरा बिल्कुल, अब फिर दोबारा से काम नाम छोड़ दो, थोड़ा सा चाय वाय कॉफी वॉफी खाना पीना सब बगल में रखो, बस 2 मिनट लूंगा मैं आपका इसमें। जब हम अ लेटर को लेंगे, बात अ लेटर की नहीं है, बात हर हस्बैंड की नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो व्हेनेवर, ऑलवेज व्हेनेवर वी आर टेकिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग, पर डायरेक्ट में तो कोई फीलिंग नहीं होती, नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग है। तो बाकी देखिए, बाकी हमने इसको अ लेटर को पहले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, टेंस के अकॉर्डिंग वॉज आ गया, सिमिलर है तो नॉट आ गया नेगेटिव के लिए, और कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बीइंग आ गया, और रिटर्न आ गया। यहां से कहानी चालू होती है। यहाँ पे टू हर हस्बैंड लगाया, हालांकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगाया हुआ था, राइट, एक प्रेपोजिशन लगाया हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जनरली, जब ये नॉन लिविंग वाले को पीछे रखते हैं तो ये नाराज हो जाता है, फीलिंग्स, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है यहाँ पे, कि नॉन लिविंग वाले को जब पीछे रखेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग को तो यहाँ ले लिया तो इसमें तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं, लेकिन इसमें तो फीलिंग्स है ना, ये नाराज हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन गिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। व्हाट आई एम सेइंग, अकॉर्डिंग टू सेंस, they have already given one preposition here, so same we have taken, no problem। अदरवाइज आगे मैं दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं आएगा, अभी मैं दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट यहाँ पे एक आ रहा है, देखो, तो यहाँ पे हमने टू दे देना है। तो क्या करोगे, एग्जाम्स में कोशिश हम ये करना चाहिए कि हमें नॉन लिविंग वाले को लेकर पहले बनाना चाहिए, लेकिन भाई आपके तो एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे ना, एमसीक्यूज आएंगे तो वहां कौन सा पता लगेगा, वहां तो ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो देखिए, जब हम हर हस्बैंड को आगे ले रहे हैं, तो हर हस्बैंड वॉज नॉट बीइंग रिटन अ लेटर बाय हर, यहां हमने कोई टू नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई आ लेटर है, उसमें तो कोई फीलिंग नहीं, उसको हमने पीछे पटके चाहे आगे पटके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर हस्बैंड वॉज नॉट बीइंग रिटन अ लेटर बाय हर कर, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस क्या था, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड को एक लेटर या कोई लेटर नहीं लिख रही। तो हमने बता दिया कि अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन, कोई भी लेटर उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था, राइट, किसको, उसके हस्बैंड को। तो वही सेमन बने, हर हस्बैंड वॉज नॉट बीइंग रिटन अ लेटर बाय हर, राइट, उसके हस्बैंड को कोई भी लेटर उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था। तो हर हस्बैंड को आप यदि लिविंग वाले को पहले ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो एक हम एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गिविंग क्या है, आपका मेन वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे हिम ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, देखो, आई वॉज गिविंग हूम, मैं किसको नहीं दे रहा था, तो हिम तो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी मैंने बताया था आपको वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में था। ये देखो गिफ्ट क्या हुआ, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिविंग थिंग है। अब क्या होता देखिए, अब मैंने कहा प्रीफर करो कि इस हिम को आगे ले आओ, तो कोई टेंशन नहीं है, तो कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वहां तो मान लो हस्बैंड नाराज हो गए तो गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे देखो, तो यहाँ पे क्या है, अ गिफ्ट वॉज, क्योंकि गिफ्ट को पहले लिया, सॉरी पहले तो हिम वाले को ले रहे ना, हिम को हमने ही पहले ले लिया, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीइंग, फिर V3 क्या है यहाँ पे, गिविंग का गिवन, फिर अ गिफ्ट बाय हिम, बस बन गया। लेकिन यदि आपने अ गिफ्ट को पहले लिया है, अ गिफ्ट को पहले लिया, तो क्या आएगा, अ गिफ्ट वॉज, फिर क्या आ जाएगा आपका बीइंग, फिर क्या आ जाएगा आप गिवन,
अब क्या आ गया टू हिम, भाई यहाँ पे नॉन लिविंग को लगा दिया हमने, a gift was being given to him, आ गया। तो क्या लगा दिया हमने, प्रेपोजिशन टू दे दिया हमने, अकॉर्डिंग टू सेंस, बाय में आ गया। तो जब दो प्रेपोजिशन आता है तो हम कोशिश करें डायरेक्ट वाले को, सॉरी इनडायरेक्ट वाले को लेकर बनाने की, क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट को यदि पीछे रखोगे तो अकॉर्डिंग टू सेंस आपको कोई गिफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो नाराज हो जा रहा है। सिंपल। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। मैं हर एक टेंस का रूल बता रहा हूँ, साथ में कोई एक एडवांस का रूल ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि इस टेंस में इंप्लीमेंट होगा, ये कहीं पे भी दे सकते हो। दे कैन गिव एनी टेंस दे कैन गिव, राइट। फिलहाल यहाँ पे इस टेंस में मैंने डाल दिया है एक एडवांस लेवल का, क्योंकि एक मैम पूछ रही थी इसके डबल ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मैंने कहा क्लास में बता दूंगा अच्छे से, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा भी करें। So you can take the screenshot now of past continuous. Next one we are going to start. Taken? Now see next one. अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, देखो वही एसवीओ कॉन्सेप्ट लगेगा, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। तो भाई हैड प्लस V3 आपको याद रखना है पास्ट परफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, इसको हमें ओवीएस कॉन्सेप्ट में चेंज करना है ओवीएस कॉन्सेप्ट में चेंज। तो ऑब्जेक्ट आ गया देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, हैड सेम आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बीन आ जाएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू that whenever you want to change to passive voice of any perfect tense, you always have to add here been। present perfect में भी been ऐड किया था हमने, past perfect में भी been ऐड कर रहे हैं, even future perfect में भी आप been ही ऐड करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस been प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हो गया देखिए यहाँ पे जब नेगेटिव बनाओगे तो क्या करना है, नॉट ऐड कर दो, बाकी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, देखो कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब इसका नेगेटिव बनाओगे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन V3 कॉम्प्लीमेंट्स बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आगे देखो somebody had already warned him, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा और भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट आपका somebody, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया आपका, ठीक है हैड, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। वार्न क्या हो गया आपका वर्ब, हिम क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हिम का क्या बन जाएगा, ही बन गया, ही के साथ हैड आएगा, भाई हैड तो कॉमन है एवरीवेयर, तो ऑलरेडी लगा दिया हमने, बीन लगा दिया, क्योंकि बीन आएगा प्रेजेंट में, वर्ड लगा दिया। अब हमने बाय समबडी नहीं लगाया, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम कि जिसके पीछे बड़ी आएगा, जिसके पीछे वन आएगा, उसको बाय के बाद मत लगाओ, क्यों? क्योंकि ये अननोन सब्जेक्ट है, अननोन सब्जेक्ट। भाई पूरा नोन हो तब भी नहीं लगाएंगे, अननोन हो तब भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस ये का हिम ये सब जरूर लग जाता है, नेम वेम लग जाता है, बाकी दे नहीं लगेगा, पुलिस का भी कभी कभार नहीं लगता, आपने देखा था। चलिए एक और लेते थे एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन। ये थोड़ा सा ये भी एडवांस लेवल का आ गया, देखो यहाँ पे ध्यान दो जरा, सब्जेक्ट हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, इटन हो गया मेन वर्ब, ऑल द केक्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो बाकी जो बचा क्या होगा, ये देखो, ये याद होगा आपको, पास्ट परफेक्ट में हमने बिफोर और आफ्टर का रूल किया था। तो जब भी एक सेंटेंस में यदि पैसिव वॉइस दे तो कंजक्शन के बाद वाला, ये कंजक्शन है, बिफोर एक कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है। So just after the conjunction, if they have given any sentence, we are not going to change into passive voice of that part. Only we have to change the passive voice of the first part. So we are taking the first part here only. What we have taken? We have taken all the cakes here in the beginning. You can see taken, and had same will be here. After that, additional helping verb we have to add. Been we have to add according to the rule. Been. Now V3 already they have given V3 eaten and by the children, because children is the subject here. So बाकी remaining same as हमें जो रख देना है यहाँ पे, before the party began, same.
क्लियर है? राइट। अब देखिए नेक्स्ट वाला, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, इंट्रोगेटिव ले लिया। इंट्रोगेटिव के रूल यहाँ पे भी नहीं लिखे मैंने, सिंगल और डबल, ये लिख लीजिएगा अपने से आप, इजी हो गया अब तो आपके लिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, है ही हो गया सब्जेक्ट, फिनिश्ड हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, राइट, और यहाँ पे हिज वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो क्या आ जाएगा, हैड का हैड आ जाएगा, हिज वर्क लगा दिया हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे। फिर बीन क्या हो गया, एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, फिनिश क्या हो गया यहाँ पे, फिनिश हो गया मेन वर्ब, और बाय क्या हो गया, हिम हो गया। सिंपल हो गया आपका। हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम, क्लियर हो रहा है कि हैड आ गया यहाँ पे, हिज वर्क आ गया यहाँ पे, बीन हो गया एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड V3 रहेगा, और यहाँ पे ही का क्या हो गया, बाय हिम हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वाई हैड ही नॉट मेड अ फाइल, तो वाई का वाई, राइट, यहाँ पे ले लिया हमने अब फाइल, या ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आ गया आगे, ऑब्जेक्ट का कोडिंग हैड आ गया, देन नॉट, देन बीन, देन मेड बाय हिम आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये पास परफेक्ट भी हो गया। देखिए यहाँ पे पास परफेक्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट हो रहा है बस ये वाला होता है, ठीक है, कि जब भी कोई कंजक्शन वाला देंगे तो उसके कंजक्शन के जस्ट नेक्स्ट पार्ट का नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। टेकन ऑल ऑफ यू, नाउ सी। अब पास्ट का सबसे लास्ट टेंस अभी बता दिया था मैंने आपको कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यू कैन सी आई हैव रिटन हियर नो चेंज, but again I would like to tell you how we can identify the past perfect tense. Simple, had been they have given, had been plus ing form। बाकी सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक ही जैसे होते हैं लगभग, ठीक है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये आपके हो गए 8 टेंस के हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 2 के नहीं बने, 6 का हमने बना लिया, तो फ्यूचर में सिर्फ 2 के बनेंगे। यस मैम, यू आर आस्किंग एनीथिंग, डू यू वांट टू आस्क? यस सर। सर अगर ये कंजक्शन आफ्टर वाला भी रहा तब भी यही रूल होगा सेम कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में ही हम चेंज करेंगे दूसरे बिल्कुल, but one condition is there, there should be one object, remember this thing, there should be one object, because as you know without object we can't change into passive voice, right? object होना चाहिए वहाँ पे। हाँ ठीक है, ओके। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। पास्ट, कल कौन सा डे है, कल फ्राइडे है, हाँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल भी ग्रामर लेंगे, अदरवाइज कल लिटरेचर ले सकते हैं। ठीक है, यदि मान लो क्योंकि छुट्टियां हो गई थी तो हो सकता है कि सैटरडे को भी क्लास हो जाए शायद, ठीक है, तो जो भी हम आपको नोटिस भेज देंगे, आप मैसेज कर देंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं यदि उसके आगे का हो जाता तो लिटरेचर भी हो जाएगा आगे का, फिर एक ग्रामर भी हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर फिर थोड़ा सा खिंच जाएगा, ग्रामर में बहुत टाइम लगता है, आप ध्यान रखिए ग्रामर में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। Thank